Firad Sathe. I'm from Pimpri Chinchwad city in the Pune district of Maharashtra, and I've been associated and I've been working for the Congress party since my college days. I initially contested student level elections from Ferguson College in Pune on the support of NSUI. Then I was appointed as the General Secretary in Maharashtra Pradesh Youth Congress. After that, I have been given an opportunity to work at the national level as National Coordinator AX, and at present I am working as National Coordinator in the training department of the Indian Youth Congress. As everybody is well aware that there's a lot of transformation that's going on in the Indian Youth Congress, and training is become an integral part and a very important aspect of the Indian Youth Congress. And I have been associated with the training team since its very initial stages. In training, basically, we give our elected office bearers some behavioral skills. The training is conducted with the support of JNLI, that is the Jawaharlal Nehru Leadership Institute, and in the training that has been imparted, there are some behavioral skills that are given, as well as some political training is also been given to all the elected office bearers of the Youth Congress, Indian Youth Congress, in which basically the history, ideology of the Indian Youth Congress, the flagship programs of the UPA government, various issues are discussed regarding media. All these issues are discussed in the training camps that are conducted in the Indian Youth Congress. What is the main role or what are the main responsibilities? Our main responsibility basically is going to various states. There is a procedure that has been laid down as far as the training is considered, and in that, right from selection of master coaches to conducting state level workshop, Lok Sabha level workshop, assembly level workshops, making sure that whatever training module has been prepared is imparted properly to the elected office bearers, as well as collect feedback regarding training, regarding the organization, and share it with the leadership as to what else, how could we further improve it, or what else could be added into this to make it more useful to the elected office bearers. आपने छात्र जीवन से और यूथ कांग्रेस में महासचिव के रूप में जैसा आपने बताया काम किया है, तो ट्रांसफॉर्मेशन के बाद की युवा कांग्रेस में और उसके पहले की युवा कांग्रेस में आप क्या अंतर देखते हैं? पहले की जो यूथ कांग्रेस थी, जैसे कि बहुत सारे लोग हुआ करते थे कमेटी में. जैसे मैं प्रदेश कमेटी में काम करता था महाराष्ट्र की, तो कम से कम 100 लोगों की कमेटी हुआ करती थी, जिसमें जिम्मेदारियां जो है, जिम्मेदारी से काम करने वाले केवल गिने चुने लोग हुआ करते थे, बाकी तो बस पोस्ट के लिए रहते थे. लेकिन अब की जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली यूथ कांग्रेस है, इसमें हर चीज़ के ऊपर एक लिमिटेशन है. 10 की कमेटी होगी, 10 लोगों की कमेटी में हर एक को जिम्मेदारी दी गई है, एंड ही इज आंसरेबल एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट पोस्ट एट विच ऑन विच ही इज वर्किंग. सो देयर इज अ डिफाइंड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एवरीबडी. द वर्क कल्चर, काम किस तरीके से होना चाहिए, आप राजनीति में किस उद्देश्य से हो, आप केवल पद के लिए राजनीति में हो या लोगों की सेवा के लिए राजनीति में हो, इसका भी फर्क और अंतर अब लोगों में, ये जो नई जो ट्रांसफॉर्मेशन वाली यूथ कांग्रेस है, इसमें ज़्यादा दिखेगा. लोगों का काम करने का तरीका बदल चुका है. ज़्यादा शोर शराबा ये न करते हुए ज़्यादा लोगों के प्रति कैसे किस तरीके की काम हम कर सके, इसके ऊपर ज़्यादा इसमें महत्व दिया गया है. काफ़ी युवा कह लें वो पहली बार आ रहे हैं राजनीति में, तो एज ए ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर आपको मुख्यतः क्या समस्याएं उनमें दिखाई पड़ती है? नहीं, समस्याएं तो कोई नहीं, ये तो बल्कि बहुत अच्छी बात है कि समाज के विभिन्न अंगों से जो युवा साथी हमारे हैं, वो संगठन में आ रहे, संगठन से जुड़ना चाह रहे, राजनीति में आना चाह रहे. राजनीति में अब तक हम केवल ये देखते आ रहे हैं कि लोग साइड पे बैठ के बस राजनेताओं को और राजनीति को कोसते रहते हैं, लेकिन ये अब बदलने की जो ज़रूरत है, जिसके तहत ये अभियान शुरू कर, ये प्रयास शुरू कर दिया गया था ट्रांसफॉर्मेशन का, वो काफ़ी हद तक मैं समझता हूँ कि सफल है. समाज के अलग अलग हिस्सों में से यूथ इसमें जुड़ रहे, पार्टी के साथ अलग अलग विचारों के साथ आ रहे, और ये अच्छा है. हाँ,
कांग्रेस पार्टी के काम करने का तरीका हो गया या इतिहास हो गया, इनके बारे में, सिस्टम जो पार्टी की है उसके बारे में शायद उनको कम जानकारी हो सकती है ये, लेकिन ये जो ट्रेनिंग्स हम लोग कंडक्ट कर रहे हैं इसके माध्यम से और कुछ समय जाने के बाद वो अपने आप सिस्टम और सारे तौर तरीके समझ के पार्टी के साथ सही मायने में मिलजुल के काम हो रहा है। भविष्य की क्या योजना है? किस चीज़ की योजना? ट्रेनिंग से रिलेटेड भविष्य की योजनाएं तो काफ़ी हैं। इसको और किस तरीके से बेहतर किया जाए, सरकार की जो इतनी सारी योजनाएं हैं, जो समाज सोशल वेलफेयर स्कीम्स यूनियन गवर्नमेंट की जो होती है, यूपीए सरकार की, वो समाज के लोगों तक जो आखिरी पंक्ति में जो आदमी बैठा है जिसके लिए ये सुविधाएं बनी है, ये उन तक कैसे पहुँचे और प्रशासन के साथ किस तरीके से हम लोग डील करें, ये सारी चीज़ों के ऊपर अभी हम लोग और इसमें अध्ययन कर रहे हैं। और ये सारे सेकेंड फेज जो हमारा ट्रेनिंग का होगा उसमें ये हम हमारे इलेक्टेड ऑफिस बियरर्स तक इन चीज़ों को पहुंचाने का प्रयास हमारा होगा। आपके हिसाब से ट्रांसफॉर्मेशन सिस्टम हिंदुस्तान की राजनीति में कितना कारगर है? कारगर, देखिए अभी तो बहुत जल्दी होगा इसके ऊपर बात करना, लेकिन मैं समझता हूँ आने वाले समय में जिस दिशा में हमारा देश जा रहा है, जिस दिशा में हमारा यूथ आगे चल रहा है, उन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग अगर सोचे और समाज क्या चाह रहा है, तो मैं समझता हूँ कि ट्रांसफॉर्मेशन एक अच्छा विकल्प है जिसके माध्यम से राजनीति में आने वाला युवा भी प्रशिक्षित हो, वो जानकारी सारी रखे कि वो क्या कर रहा है, किसके लिए यहाँ राजनीति में आया है और समाज के लिए वो क्या करना चाह रहा है। तो मैं समझता हूँ कि भविष्य में आने वाले समय में ट्रांसफॉर्मेशन भारत देश की राजनीति में अच्छा कारगर साबित होगा। कोई ऐसा दिलचस्प वाकया जो आप शेयर करना चाहें हमारे साथ? एज ए ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर, एज ए जनरल सेक्रेटरी, ट्रांसफॉर्म आफ्टर पोस्ट ट्रांसफॉर्मेशन। देखिए अब ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर होने की वजह से हमें पार्टी की तरफ से जो जिम्मेदारी दी गई है उसके तहत भारत के अलग अलग राज्यों में हमें काम करने का मौका ज़रूर मिला है। और मैं समझता हूँ कि हम बहुत भाग्यशाली है इस मामले में, क्योंकि भारत में के अलग अलग राज्यों में जाके, अलग अलग लोकसभाओं में जाके वहाँ के लोगों के, वहाँ के युवाओं के साथ इंटरेक्ट करना, वहाँ की राजनीति को समझना, वहाँ की समस्याओं को समझना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी बात है। और ये बहुत बड़ा मौका हमें पार्टी ने दिया है, जिसके लिए मैं पार्टी का बहुत बहुत आभारी भी हूँ कि ये समझना और ये जानना सब इतने भाग्यशाली मैं समझता हूँ नहीं होते, वो हमें मौका मिला है। तो युवाओं को आप अपनी तरफ से कोई संदेश देना चाहें? युवाओं को संदेश यही होगा कि अब देखिए, हम भारत दुनिया में युवा देश माना जाता है, 60% से ऊपर लोग यूथ माने जाते हैं। और बदलाव अगर हम पूरी दुनिया का इतिहास देखें, हिस्ट्री देखें, इफ वी सी द हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, change has always been brought about by the youth. So I think it is high time that the Indian politics and the Indian way of functioning, the systems, should be changed, and the youth should play a very important role in doing this. And well, of course, everybody wants to see India as a superpower, 2020, 2025, whenever. But if India has to become a superpower, it is this generation of youth which is going to be very, very instrumental. And I think we should, the youth should play a more interactive role in politics.